slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. समय बीता, रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 भी बजे, उसे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आखिर में उसे एक बात समझ आ गई कि अगर आज नींद पूरी नहीं की तो कल परीक्षा में बहुत तकलीफ हो सकती है। यही सोचकर वो वहीं मंदिर में सो जाता है। सुबह के 7 बजे उसकी आंख खुलती है। वो घर जाता है जहाँ उसकी माँ और बहन दोनों फूट फूट कर रो रहे होते हैं। पहले तो उसे लगा कि कहीं मेरे पिता को कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन बाद में पता चला कि बात वो नहीं थी। दरअसल बात ये थी कि घर में 3,500 रुपए जमा करके रखे थे, जो घर खर्च और दवाई के लिए थे। कल रात को 2 चोरिया मुसाफिर जो यहीं से गुजर रहे थे, उन्होंने वो चुरा लिए और भाग निकले। ये सुनने के बाद वरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हें क्या लग रहा है? सिर्फ 3,500 रुपए के लिए? नहीं, बस 100 रुपए के लिए। दरअसल वरुण के गाँव से एग्जाम सेंटर तक का सफर 25 किलोमीटर का था और उसके लिए उसने कुछ भाड़ा बचाया था। चोरी की वजह से अब उसके पास कोई पैसे नहीं बचे, तो वो आज अपनी परीक्षा के लिए कैसे जाएगा? दूसरा डर उसे लगा कि कहीं चोर ने उसका एडमिट कार्ड तो नहीं चुरा लिया। वो तुरंत भागा और देखा तो एडमिट कार्ड सलामत था, लेकिन पैसे कुछ नहीं बचे। उसके घर वाले 3,500 को लेकर परेशान थे, लेकिन वो बस उस 100 रुपए के लिए टेंशन में था कि आखिर वो अब पहुंचेगा कैसे अपनी परीक्षा में। उसकी माँ उसे ही दोष दे रही थी कि अगर वो कल रात को अपने घर पे रुका होता तो ऐसा नहीं होता। खैर, इधर हर कोई उसी को कोसे जा रहा था और वो इन सबको इग्नोर करके बस इतना सोच रहा था कि वो पहुंचेगा कैसे। गांव में उसका सिर्फ एक दोस्त था, नकुल। वो उसके पास पहुंचा और जाकर उससे दिल से रिक्वेस्ट करने लगा कि बस आज के लिए वो अपनी साइकिल उसे उधार दे दे। बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने के बाद नकुल मान जाता है, लेकिन नकुल की साइकिल का चैन बड़ा ढीला था, जो थोड़े थोड़े समय पे उतर जाता था। ये बात उसने वरुण को भी बोली, लेकिन वरुण ने कहा कि ये सब वो देख लेगा, वो भी गैराज में काम करता है, उसे सब आता है। उसी वक्त बस थोड़ा कुछ खाकर वरुण एग्जाम सेंटर के लिए निकल जाता है।
साइकिल चलाता हुआ वो कुछ दूर आगे बढ़ा होता है कि साइकिल झटके देना शुरू कर देती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो आगे बढ़ता रहता है। 15 किलोमीटर के सफर के बाद वो थक कर टूट चुका था, पसीने से पूरा नहा चुका था, लेकिन चाहे जैसे भी हो पहुंचना तो उसे पड़ेगा ही। बड़ी मुश्किल से 12 बजे पूरा पसीने से नहाया हुआ वो आखिरकार पहुंच जाता है। इतनी मेहनत सिर्फ उसने आने में की थी। वो तुरंत लाइब्रेरी जाता है। इतनी थकी हुई हालत होने के बावजूद भी वो रुकता नहीं है, बल्कि रिवीजन चालू करता है, क्योंकि अब भी एग्जाम को 3 घंटा बचा था। फाइनली एग्जाम का समय आता है। उसका एग्जाम पूरा होता है। वो सप्लीमेंट्स लेकर लिखता है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने सारी रात मेहनत की थी और इतनी दूर 25 किलोमीटर साइकिल चलाकर आया है। एग्जाम खत्म होता है। वो अपने घर लौटता है। अपने घर वालों की हालत देखकर वो अंदर से रो रहा होता है, मगर किसी को अपने आंसू नहीं दिखाता और कल से फुल टाइम उसी गैराज पर काम करना चालू कर देता है। 2 महीने बाद रिजल्ट का दिन आता है। वरुण गांव से दूर जाकर अपना रिजल्ट चेक करता है, क्योंकि वहाँ सिग्नल बड़ा वीक था। अपनी आईडी डालने के कुछ सेकंड बाद सामने उसका रिजल्ट आता है, और जैसे रिजल्ट आता है इतने समय में पहली बार वरुण खुशी के आंसू वहीं फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि रेलवेज का उसका एग्जाम निकल चुका था और अब जिंदगी में सारे रोने वाले दिन भी जा चुके थे। वो पैदल दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचता है और अपने परिवार को एक खुशखबरी देता है। इस खुशखबरी को सुनकर उसके घर वालों को भी यकीन नहीं होता। वो सभी उस दिन साथ में भर पेट खाते हैं और खुलकर मुस्कुराते हैं। वरुण का रेलवेज में ऑफिसर्स के लिए सिलेक्शन हो चुका था। उसके पिता का इलाज बहुत अच्छी जगह होना शुरू होता है, जिससे कुछ ही महीनों में उसके पिता काफी ठीक हो जाते हैं। बहन की वो बड़े घर में शादी कराता है, और जहाँ एक समय पहले उसके खुद के परिवार के लिए 2 वक्त का खाना मुश्किल होता था, अब हर रविवार को वो अपने पैसों से गरीबों को मुफ्त भोजन खिलाता है। वो आज एक बहुत अच्छे घर में रहता है। लाख रुपए से ज्यादा की सैलरी है उसकी। जहाँ कभी साइकिल के लिए वो तरसता था, आज कार में घूमता है। जहाँ कभी 3,500 के लिए और 100 रुपए के लिए रोया था, वो आज 3,500 की तो सिर्फ साड़ी उसकी माँ पहनती है। देखो दोस्तों, जिंदगी कहाँ से कहाँ बदल जाती है एक पल में, लेकिन ये सब कुछ एक पल में नहीं होता। कामयाबी या शोहरत की सबसे बड़ी बात ये होती है कि कामयाब होने के लिए आपका अमीर गरीब, खूबसूरत बदसूरत, होशियार या बुड़बक होना जरूरी नहीं होता, बल्कि थोड़ा स्मार्ट और मेहनत होना मायने रखता है। इस पूरी कहानी, इस पूरे सफर को देखेंगे तो एक ही चीज सबसे ज्यादा गौर करने वाली और सीखने वाली हमें मिलेगी, और वो हम देख सकते हैं कि सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं, वरुण को मेहनत करने का नशा था। जब एक इंसान को मेहनत का नशा हो जाता है ना, तब जाकर सच में वो कुछ भी बन सकता है। अगर मेहनत करने का नशा नहीं होता ना उसमें, तो आज वो गैराज पर ही काम कर रहा होता। पिता की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी होती। बहन की जिंदगी खराब हो जाती, क्योंकि अच्छे घर में शादी नहीं हो पाती। माँ जिंदगी भर घुटती रह जाती। लेकिन बहुत जल्द उसे ये बात समझ में आ गई थी कि आज मेहनत का नशा करना होगा, वरना कल जिंदगी भर के लिए रोने की आदत डालनी होगी। वो कितना मेहनती था ये तो हमने देख ही लिया है। दिन में गैराज और रात को लालटेन पर टिका रहता। 2 किलोमीटर पैदल चले जाएं तो ना जाने कितना दर्द दिखाते हैं, और वो 15 किलोमीटर साइकिल चलाता है। फिर भी एग्जाम में 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं फरमाता। दोस्तों, आखिर में बस एक छोटी लेकिन बहुत पावरफुल बात कहना चाहूंगा कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो बंदा मेहनत करता है, चाहे वो कोई भी हो। हर कोई आज जो कामयाबी की अय्यासी करता तुम्हें दिख रहा है ना, कभी उसने भी मेहनत का नशा किया होगा। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद ये एहसास कराने का था कि एक इंसान मेहनत के किस हद तक जा सकता है, और जब एक बार तुम मेहनत का नशा करना सीख जाते हो ना, तो हर मुकद्दर का सिकंदर तुम्हारी मुट्ठी में होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।